Yes, we can start. Please start now. Okay, so can you see my screen? मुझे बस एक confirmation दे दें ताकि we can start. Yes, yes, yes. I can Yes, see we your can see screen. your screen. Okay. Assalamu alaikum, everyone. My name is Asad Bashir. I'll start off with my introduction first. I'm basically an information security professional. I'm mostly working in the offensive security field. मेरा main जो core area है, that's ethical hacking, pen testing, bug bounties, or everything related to offensive security. It's been 5 to 6 years. मैं इसमें काम कर रहा हूँ. I've been working for a couple of organizations, couple of big names, and उसके साथ साथ I have relevant certifications, offensive security की ही mostly. ये जो session है थोड़ा सा we're going to focus mostly on the introduction phase, cyber security से related उसकी क्या क्या fields हैं, उसमें आगे jobs किस तरह की हैं, आगे demand किस तरह की है, and थोड़ा सा हम touch करेंगे about the famous attacks that are being happening right now और जो पुराने हो चुके हैं और why this field is very important. So अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन हो किसी का तो डू लेट मी नो. मैं साथ साथ जो है आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो है साथ साथ आंसर कर दूं, वरना फिर we'll have a question answer session in the end. Okay, so information security. I really want this session to be a little interactive. अगर साथ साथ मुझे कोई answer कर सके कि what is their perception of information security? What do you think information security really is? Can anyone? Hi, Asad. So basically making our information secure from external hackers or external entities and keeping our data secure. I think that is basically information security for me. Okay, good. So basically, just like Ubaida said, information security is something that is you do you make sure that you have to protect your data. आपने अपना data protect करना है, आपने अपने हर asset को protect करना है. So that is why this field came into place. और उसमें the main three things that we focus on is confidentiality, integrity, and availability. We have to ensure all three of these. This is also called the CIA triad. We're going to look into that later on in the slides. But information security can be anything. जिधर data पड़ा हो, जिधर आपके information important assets पड़े हुए हों, वहाँ पर you have to focus on their security. You have to focus कि कोई hacker या कोई भी any external entity cannot hack it or steal it. So this is basically something जो कि information security का एक main concept है. अच्छा, there's a very big misconception. A lot of people basically confuse what cybersecurity and information security is. A lot of people mix them, and a lot of people don't know what the actual difference is. So again, I would go to all of you. I would like to ask if someone wants to add on it. कि cybersecurity और information security में क्या difference है? Is there anyone who can? I think cyber security might be, I think I'm not sure about it, and I'm not working as much. Cyber security might be
network security and the application level security, and the information security is might be the data level security. Acha, so main difference basically, you're almost there. Obviously, cybersecurity is everything that is related to the cyberspace, or everything that's related to the technical stuff, और आपके computers हैं, आपके network है, आपकी applications हैं, उन सब की security that lies in the cybersecurity part. आपका cloud environment है, that also lies in the cybersecurity part. But information security का थोड़ा सा जो boundary है वो it's a little more, because उसमें काफी सारी और चीजें भी आ जाती हैं, because physical security is also a part of information security. When we do pen test, हम physical pen test भी करते हैं. It's just like आप सिर्फ physical security check कर रहे होते हैं उस organization की, and उसके अलावा let's suppose आपकी table के ऊपर कोई data पड़ा है, and there's you're not in the office, or someone just comes in your office और वो आपको data उठा के ले जाता है, या वो files उठा के ले जाता है, या he takes a picture of it, or he steals the data, or anything. तो वो that comes in the information security part basically. This should not happen too, because a lot of corporate companies, what they do is they have the keys, the important passwords stored in a piece of paper, वो lockers में होते हैं. And let's suppose, for example, a thief comes in and वो उस locker को access कर ले, उस locker को access करके वो passwords ले पाए. So that is also something that's not secure at all. So उस चीज को भी secure रखना comes in the information security वाली side. And cyber security is everything that is in the cyber field, in the technical field. See, so cybersecurity is just a small part of information security basically. Information security में बाकी सारी चीजें involved हैं. Cybersecurity is something only in the cyberspace. So this is what I talked about in the first slide, the CIA triad. And this is basically जो हमारा information security का main goal है, वो इन 3 aspects के ऊपर circle करता है. Confidentiality, obviously we have to check कि confidentiality intact रहे. किसी भी चीज की कोई confidential information है, confidential documents हैं, कोई confidential service हैं, वो उसको protect करना और उसको confidential ही रखना, it's a part of information security, and it's basically a goal of information security कि हमने उसको किस तरीके से confidential data को confidential ही रखना है. फिर availability, this comes basically कि आपके ऊपर let's suppose काफी corporate organizations हैं, उसके ऊपर DOS attacks हो जाते हैं and services down हो जाती हैं. We often hear कि PTCL का server down हो गया, PTCL got hacked, और PTCL के ऊपर जो है वो DOS अटैक हुआ, बफर ओवरफ्लोज अटैक हुए, डिफरेंट किस्म के अटैक्स हुए, जिसकी वजह से जो है सर्विसेज डाउन होंगी. तो availability ensure करना is also a goal of information security. And then the integrity of the data basically. कोई भी hacker है, let's suppose for example he hacks into a system and he or she is changing the data, he or she is वो कोई भी data उसकी alteration करके चला जाता है, तो that's also a big breach. तो इसीलिए integrity को भी focus करना is a major goal of information security. Any questions up till now? No, it's fine at the moment. Okay. So we're going to talk about 3 major fields of or roles of information security. हमारी वैसे काफी सारी fields हैं, but I've categorized them in 3 major fields. 3 major fields हैं जो कि चल रही हैं.
सबसे पहले it's the offensive security field. जिस तरह से I told you in the start that I'm working in the offensive security part. I'm basically an ethical hacker, pen tester. Offensive security में सारी वो चीजें आती हैं कि we have pen testers over here, we have malware analysts over here. हमारे पास red teamers होते हैं basically. We also call it the red team. इनका मेन मकसद होता है कि हर एप्लीकेशन को, हर एसेट को टेस्ट करना एज अ हैकर, एज अ वाइट हैट हैकर, उसको टेस्ट करना, उसको हैक करने की कोशिश करना, एंड आफ्टर दैट उसको उसके अंदर से वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करके फिक्सेस देने की कोशिश करना, और टू हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन टू फिक्स दोज वल्नरेबिलिटीज, ताकि एक बाहर का हैकर आकर आपको हैक ना कर सके. तो दैट इज व्हाट ऑफेंसिव सिक्योरिटी इज. इसमें काफ़ी रोल्स हैं, इसमें रेड टीमर्स हैं, इसमें मेन हमारे कोर पेन टेस्टर्स हैं, वो काम करते हैं. सोर्स कोड रिव्यूअर्स होते हैं जो कि शुरू से सोर्स कोड रिव्यू कर रहे होते हैं व्हेन द एसेट इज इन द मेकिंग. ठीक है. उसके अलावा हमारा डेफसेकॉप्स इज अ न्यू फील्ड. ये भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी का ही पार्ट है. ये बेसिकली डेवऑप्स और हमारी ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो है वो मिलाकर, तो इट्स अ न्यू फील्ड. उसके अलावा फोरेंसिक एनालिस्ट वगैरह भी होते हैं इसमें. तो दिस इज समथिंग प्योरली जो कि हम अटैक फेज में काम कर रहे होते हैं. रेड टीमिंग, सारी की सारी चीजें ऑफेंसिव सिक्योरिटी में आती हैं. फिर there comes in the defensive security part. यहाँ पर this team is basically इनका मकसद होता है to save the organization from external attacks, external or internal attacks. ये हर किस्म के products लगाते हैं inside your organization, ये हर किस्म के rules लगाते हैं, हर किस्म के checks रखते हैं, और उसके बाद फिर incident handlers होते हैं जो कि अगर let's suppose कोई attack आ भी जाए तो वो उस incident को handle कर सकें, उसका analysis कर सकें, या फिर उस अटैक को रोक सकें, या फिर उसका डैमेज जो है वो एज मिनिमल एज पॉसिबल कर सकें. तो दिस इज बेसिकली द डिफेंसिव सिक्योरिटी पार्ट. इसमें सॉक एनालिस्ट हमारे पास हैं, डिफरेंट सिक्योरिटी इंजीनियर्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास थ्रेट इंटेलिजेंस के लोग होते हैं. तो दे आर अ पार्ट ऑफ द डिफेंसिव सिक्योरिटी टीम. The defensive security is also called the blue team. This offensive security is the red team. This is also called the blue team. Uske baad we move on to GRC, governance, risk and compliance. ये basically वो लोग होते हैं जो आपकी organization को different compliance procedures follow करवाते हैं, different governance procedures follow करवाते हैं, और जो है आपको एक risk impact बताते हैं कि आपकी company is at what risk. और let's suppose for example there's a GRC report वो जो कि आपको ISO 27001 जो है implement करवा कर दे रहा है. तो this is ISO 27001 is a big certification जो कि companies आजकल लेना चाहती हैं, just to वो एक bare minimum है basically to see if your company is secure or not. अच्छा. Is there a question? अच्छा, I'll continue. So basically GRC वाले ये करते हैं कि वो फॉलो करवाते हैं. If you're in a bank, mostly banks जो है आजकल PCI DSS compliance की तरफ जा रहे हैं, which is a standard for their payment card gateways. उसके अलावा अगर आप health organizations में देखें तो HIPAA है. HIPAA is basically HIPAA is basically एक हमारी जो bare minimum आप कह लें कि compliance certification है for the health organizations. तो इस तरह की different certifications की तरफ लोग जाते हैं. यूरोप में they go for GDPR. तो these are the people, GRC वाले लोग, GRC analyst, और ये वो लोग हैं जो कि basically इसको implement करवाते हैं. अच्छा, कि सैलरी स्ट्रक्चर की बात की जाए, रोल्स की बात की जाए, तो ये कुछ रोल्स हैं जो कि चल रहे हैं इन द मार्केट, in the security field. Salary देखकर the salary is obviously in the USD part, per year salary जो है वो जो actual rate इनका चल रहा है वो ये चल रहा है.
इसमें आप देख सकते हैं we have security architects, उनकी main duties are they build and maintain computer and network security infrastructure, वो different security structures को test करते हैं और उसके बाद फिर verify करते हैं सारी की सारी development और जो test scripts हैं वो verify करते हैं. Their salary range is between $84,000 to $154,000 yearly. ये जो है obviously vary करता है depending on your एक्सपीरियंस. फिर डेटा सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, ये हमारे जो है सिक्योरिटी ऑडिट्स परफॉर्म करते हैं. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि ये जीआरसी वाला पार्ट जो कि हमारे सिक्योरिटी ऑडिट्स रिस्क असेसमेंट्स वो कंडक्ट करते हैं और उसके बाद आपकी कंपनी को एक रिस्क रेटिंग देते हैं कि अच्छा दिस इज द रिस्क यू आर टेकिंग, दिस इज द रिस्क रेटिंग यू आर ऑन, और itni probability hai ki your organization can be hacked or can be compromised. So these are the ones that are doing the GRC part. Phir security engineers hain, they're doing they maintain IT security solutions, they configure firewalls, testing new security solutions, phir investigate intrusion and incidents. These are the people that are part of the defensive team, basically the SOC team. उसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये भी फायरवॉल्स का काम करते हैं, ये पैचेस वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं. दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द डिफेंसिव टीम. इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजर, दीज आर सम मैनेजर्स जो कि पॉलिसी मेकिंग करते हैं. उसके अलावा ये टीम्स जो है वो मैनेज करते हैं. तो दिस इज these are some of the roles जो कि आजकल चल रही हैं. These are some salary packages. So before we move on, if there's any question. Yes, Asad, I have one question. Actually, मेरा question ये है कि थोड़ा सा ज़रा बेसिक लेवल का, because I'm not a security specialist. मुझे सिर्फ ये होता है कि यार मुझे काफ़ी अर्सा हो गया AWS के ऊपर DevOps की पोजीशन पे काम करते हुए. अगर एक नॉर्मल पर्सन जिसका बैकग्राउंड नहीं है सिक्योरिटी का, IT का बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो मूव कर सकता है सिक्योरिटी के ऊपर या उसको करना चाहिए? क्योंकि इसलिए कि चलो डेवऑप्स तो चले थोड़ी सी ज़्यादा इस टाइम ज़्यादा डिमांडेड फील्ड है, एक कहा जा सकता है. लेकिन अगर आप IT स्पेशलिस्ट हैं, आप सिस्टम एडमिन हैं, तो अगर आपको इस तरफ मूव होना है तो उसके लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, और क्या इसमें कोई प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें और कुछ इस तरह की चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं या नहीं? क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए? अच्छा, अगर आप मेरे से ये सवाल पूछें तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि सिक्योरिटी वाली साइड पे लोगों को आना चाहिए. अगर वो टोटली नहीं आ रहे तो एवरी रिसोर्स आई थिंक उसको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी पार्ट आना चाहिए, ताकि जब एंड पे एक सिक्योरिटी रिसोर्स के पास आपका प्रोडक्ट जा रहा है फॉर टेस्टिंग, उसमें वैसे ही वल्नरेबिलिटीज कम हो. एक तो ये पार्ट. बट अगर कोई भी स्विच करना चाह रहा है तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कोई डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है या नहीं होती, या मैं किस फील्ड से हूं तो मैं इजीली शिफ्ट कर सकता हूं टू दिस फील्ड. तो इफ you've done your computer sciences, आप बड़े आराम से इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. डेवलपमेंट वाली साइड अगर आपकी वैसे डेवलपमेंट अच्छी है तो यू कैन इजीली शिफ्ट टू एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी. दीज आर वेरी बिग डोमेन्स. आप सिर्फ इसमें भी अगर रहें तो यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल. क्योंकि बेसिकली डेवलपर्स अगर सिक्योरिटी सीखते हैं तो उनको क्योंकि बैक एंड लॉजिक का समझ आ रहा होता है, उनको बैक एंड फ्लो का समझ आ रहा होता है ऑफ द एप्लीकेशन, तो वो दे मेक वेरी गुड पेन टेस्टर्स एंड दे मेक वेरी गुड सिक्योरिटी रिसोर्सेज. उसके अलावा इफ यू नॉट गुड एट डेवलपमेंट एंड इफ यू गुड एट नेटवर्क वाली साइड, तो उसके लिए हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी है, हमारे पास नेटवर्क पेन टेस्टिंग है, हमारे पास OS लेवल सिक्योरिटी है, हमारे पास हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी है, हमारे पास क्लाउड सिक्योरिटी है. आप उस फील्ड्स की तरफ बड़े आराम से जा सकते हैं. एंड इफ आपको डेवलपमेंट नहीं आती और आप ये नेटवर्क वाली साइड पर ही जाना चाहते हैं, एंड इफ यू हैव वेरी मिनिमम नॉलेज नेटवर्किंग का कि IP एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, उसके अलावा सबनेट्स वगैरह क्या होते हैं, बस ये जो मिनिमम नॉलेज है अगर आपके पास ये है तो यू कैन इजीली शिफ्ट एंड यू कैन इजीली लर्न एंड यू कैन इजीली शिफ्ट दिस फील्ड, और साथ साथ आप इसको काम कर सकते हैं. आई डिलीवर्ड ट्रेनिंग वंस जो कि नॉन टेक्निकल लोगों के लिए थी. There
were people जो के there were even people from the BBA field जो के मेरी उस training में थे, and just because they wanted to learn, वो उनको बहुत bits and pieces में कुछ technical चीजें शुरू से बता के कि अच्छा Linux की coding किस तरीके से होती है, या ये ports क्या होती हैं, या ये IP address क्या होता है, subnets क्या होती हैं, ये चीजें एक बड़ा बेसिक लेवल पर समझा के, तो I gave them a training on ethical hacking, and they're working in a couple of organizations now. तो वो anyone can join in, मैं तो कहता हूँ, and everyone should. और उसमें काफी आगे फायदा ये है कि even if you don't get jobs, तो you have the bug bounty वाली साइड. अगर आपके पास जॉब्स नहीं है, एक तो वैसे भी फ्रीलांसिंग वाली साइड इसकी it's quite open, and it's a very vast field with बहुत अच्छे आपको रेट्स और पेज मिल जाती हैं द फ्रीलांसिंग साइड सिक्योरिटी के अंदर. लेकिन बग बाउंटीज, इफ यू डू बग बाउंटीज, आप डिफरेंट जगहों पे बग्स निकालें, यू इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट बग्स इन बिगर कंपनीज, जिस तरह फेसबुक है, एप्पल है, इस तरह से, तो दे गिव यू बिग बाउंटीज. ठीक है, तो वो दिस इज समथिंग जो कि मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी सिखाना चाहिए. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई लर्नड इन द यूनिवर्सिटी. अब आहिस्ता आहिस्ता से यूनिवर्सिटीज में आ रहा है. बैचलर्स जो है वो बैचलर्स में सिर्फ आई गेस एयर एंड फास्ट करवा रहे हैं, वरना मास्टर्स था सिर्फ फ्रॉम एयर एंड नस्ट. बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कमिंग टू दिस फील्ड, एवरीवन, फॉर एवरीवन. ओके, दैट्स गुड. अच्छा, सॉरी मैं ही क्वेश्चंस कर रहा हूँ, लेकिन ये कि मेरा ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा पर्सनल है. बग बाउंटी एक तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और दूसरा ये कि आपने मैक्सिमम कितनी की बग बाउंटी की है. आई नो इट्स पर्सनल, लेकिन एक एवरेज बता दो. वो तो थोड़ा सा बताओ उसका अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन लोगों को में थोड़ी ज़्यादा इसलिए होती है बिकॉज इट्स लाइक अ शॉर्ट वे टू अर्न मनी, कि आप थोड़ा सा जो है वो कुछ अर्न कर सकते हो. सो व्हाट यू से ऑन इट? एग्जैक्टली. अच्छा, बग बाउंटीज जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी की कर रहे हो. अगर आप किसी छोटी कंपनी, अगर आप किसी बहुत छोटी कंपनी की कर रहे हैं, तो वो तो काफी बार ऐसे होता है, वो आपको कोई अपना वाउचर भेज देंगे, कोई टी शर्ट भेज देंगे, कोई इस तरह की चीज भेज देंगे. लेकिन if you're doing of a big company like Facebook, Apple, Netflix, Sony वगैरह, I've done a lot of bounties, काफी सारी organizations में. मेरी जो the biggest bounty I did was last year, और वो that was from Apple. और उनकी दो vulnerabilities, I found out 2 critical vulnerabilities, and $25,000 की वो bounty थी. और इस तरीके से जो है डिपेंड करता है कि आप vulnerability कौन सी फाइंड आउट करें. if it's a critical vulnerability, तो वो ज्यादा भी वो लोग देते हैं. Just like last month, there was a guy from India. उसने Microsoft की एक बहुत critical vulnerability, बहुत critical bug निकाला था, and he got awarded for $80,000. तो totally depends on the organization you're targeting, and totally depends on जो आपने बग निकाला है उसके ऊपर, कि वो कितना बड़ा बग है, तो उसके हिसाब से आपको बाउंटी मिलती है. ऑब्वियसली देयर आर बाउंटीज जो कि छोटी भी हैं, $100, $200, $300, $500 वाली, बट जो जितना बड़ा बग उतनी बड़ी बाउंटी. एंड इट टेक्स टाइम. वैसे आई वुड से इफ योर एक्सपीरियंस, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया विद बग बाउंटीज, तो वो इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 to 3 days एक नॉर्मल बाउंटी निकालने में. नॉर्मल बाउंटी मीन्स अराउंड $1,000 to $1,500. वो बड़े आराम से आप जो है निकाल सकते हो, बिकॉज आते आते ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इज 100% सिक्योर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इज 100% सिक्योर. एवरी नाउ एंड देन न्यू वल्नरेबिलिटीज आर कमिंग, और नई वल्नरेबिलिटीज जब तक दूसरी कंपनी पैच कर लेती है, उतनी देर तक आप कॉम्प्रोमाइज कर लो उनको, और वो वाला बग निकाल लो, और वो उनको आप रिपोर्ट बना कर दे दो, और उसके बाद फिर यू कैन एंजॉय अ बाउंटी. Perfect. Thank you. किसी और का क्वेश्चन है? Yeah, I have a question. Yes. So, can you please describe the process of finding the vulnerability, or finding any threat that, like, if I want to scan an organization, like, what is it, and what are their assets are, and how can I scan them? How can I find the potential vulnerabilities? Maybe
also from the application level and also from the network level, whatever you're expert in. So can you share some of the details, like how do you do that? Uh, Firstly, I would say I actually work as a, a, a bug bounty researcher or as a vulnerability researcher or a pen testers. हमारा main मकसद जो है it's basically white hat hacking. इसकी आगे details भी आएंगी. There are different types of hackers basically. White hat hacking ये होती है कि आप you find out a vulnerability and then you report it और फिर आपका कोई malicious purpose नहीं होता. तो जो आप basically what you're saying is to scam an organization, वो तो black hat hackers ही करते हैं. But अगर मैं वैसे as a white hat hacker बात करूं तो what we do is हम सबसे पहले कोई organization अगर let's suppose target करते हैं, let's suppose आज मैं सोचता हूं कि मैंने नादरा को let's suppose Just, नादरा चले. just to clarify, I think you've heard the word scam. I'm not saying scam. I am saying scanning. Scan. Okay. Sorry. I thought you said scam. Yeah. Okay. So no worries. I'm not. That was not the question of the hacking. At least someone. I am also talking about the white hat hacker. So I have a project that I'm working on. So let me share a little bit more context, Okay. so you understand a little bit better. So I have a project. We are a network security company. I work for a network security company, and we are providing some of the end-to-end security and various mainly over the network, and all of your devices can connect to our network, and we are doing the threat analysis and file filtering, vulnerability scanning, and TLS decryption and all of that stuff. So now the point is, so we're gonna go get some customers, and we're gonna targeting some of the basic organizations that have their needs and maybe possibly vulnerable to some of the attacks. And those organizations have they are running cloud, they're running applications and all of that different stuff in different locations. And now we need to find out that whether they are vulnerable to a hacker, right? And what would be the process? So we have some process in place. So we can do the brute force the DNS domains of the target companies and various other port scanning and other stuff, that what are the assets and how they are vulnerable, what are the fingerprinting. So we have that information. Now we need to find out whether there, so we can probably in some confidentiality level, like we can say that hey, this guy is running Apache server or Ubuntu server or Windows server or maybe running something else, right? So now we need to find out whether their applications are vulnerable from the internet, right? And how would we tell anyone that hey, you are vulnerable, or maybe their application is vulnerable? So I'm just yeah. So that was my background to for your question. So can you share some of the details on that? Yeah, sure. अच्छा, तो first of all, सबसे पहले तो ये कि if you have a pentest project, a pentest project is a little different than a bug bounty basically. अगर आप के पास एक pentest project है and they've awarded you a project and they've awarded you with a project कि आप जो है इस हमारी vulnerabilities find out करके हमें दें. तो what happens is कि हमें कोई और VPNs वगैरह यूज नहीं करने पड़ते हैं. We can target the organization directly and we can tell them कि okay, these are our IPs. इस IP एड्रेस से आपके ऊपर alerts आएंगे, इस IP एड्रेस से आपके ऊपर attacks आएंगे. तो please don't think it's malicious. We're not doing anything malicious. हम pen testing कर रहे हैं, and if there's something जो कि कर सकती है, कोई डैमेज पहुंचा सकती है, कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जो ज्यादा डैमेज पहुंचा सकती है टू योर ऑर्गेनाइजेशन और योर एप्लीकेशन, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. और इवन इफ वी डू दैट वी आर गोइंग टू डू इट इन द ऑफ आवर्स. तो वो पहले तो ये चीज हम सेट कर लेते हैं उनके साथ कि कब करनी है, कैसे करनी है. उसके बाद इफ यू आर डूइंग अ पेन टेस्ट, तो
सबसे पहले आई वुड से कि हम एक्सटर्नल पेंटेस्ट से शुरू करेंगे। आप सबसे पहले एक्सटर्नल एंटिटीज को टारगेट करेंगे। एक्सटर्नल एंटिटीज वो हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक एंटिटीज हैं। एवरी एप्लीकेशन, एवरी पब्लिक एपीआई, एवरी पब्लिक आईपी एड्रेस, एवरीथिंग जो कि उनका पब्लिक है, you're going to find that out। उसके different tools हैं, there are different processes जिसके थ्रू आप वो find out कर सकते हैं। You can find them out from dark web if your team is capable। उसके अलावा वैसे भी काफ़ी सारी APIs होती हैं, काफ़ी IP addresses होते हैं which are public but they're not known to normal people। वो normal लोग जो है उसको access नहीं कर पाते या कुछ भी, तो आप उनको पहले find out करेंगे, फिर उनको एक एक करके आप टेस्ट करना शुरू करेंगे। For the applications, I would say what you have to do is you have to find out the input points first। As a hacker, सबसे पहले हम input points ढूंढते हैं of the application। हम देखते हैं कि अच्छा कहाँ से मैं entry point मेरे कौन से हो सकते हैं। login page मेरा entry point हो सकता है, search bar मेरा entry point हो सकता है, कोई भी form है उस application के अंदर वो मेरा entry point हो सकता है। उसके अलावा सारे के सारे buttons को हम टेस्ट करते हैं। उसके अलावा हम ऊपर जो फ्रेम्स लगे हुए हैं एप्लीकेशन के ऊपर, हम उसको टेस्ट करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि बैकएंड लाइब्रेरी यूज हो रही हैं। Yeah, makes sense. Yeah, I think that's good. Yeah. Is there any specific tool or suite that can do that, all of that stuff? Or what do you recommend to use? Like, what are your experience in that? There are a lot of scanners, but scanning is not pen testing at all। There are a lot of companies जो कि ये काम कर रही हैं कि they have those automated scanners and they're running those scanners and this basically वो एक तरह से fraudulent activity ही कर रहे हैं कि वो सिर्फ scanners चला के report दे देते हैं और organizations को कहते हैं कि ये हमने आपका pen test किया, but that's not a pen test at all। For every activity that you're doing, there's a different tool। There are a lot of tools जो कि बहुत सारी activities भी cover करते हैं, but for every activity there's a different tool। For example, for web, we have WebSuit जो कि एक it's a very major tool, it's a request interception tool और उसमें बहुत सारी activities और बहुत सारे attacks हम कर सकते हैं, but web testing सारी की सारी उससे नहीं हो सकती। इसी तरह से if you're talking about the network side, तो Metasploit is a very major tool। उसके अलावा कुछ और tools हैं वो काफी major tools हैं, but every phase has different tools। Information gathering has different tools। Pen testing, vulnerability assessment, post exploitation, they all have different tools। If you're talking about scanners, so I can recommend you some scanners जो कि सिर्फ आपको ना एक vulnerability identify करके दे सकते हैं कि there's a slight chance कि इसमें ये vulnerability हो। अब उन स्कैनर्स के जो रिजल्ट्स हैं उनमें काफी सारे फॉल्स पॉजिटिव्स होते हैं और इसीलिए हम हैकर्स उन स्कैनर्स को इसलिए यूज करते हैं कि हम सिर्फ देख लें कि अच्छा ये किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है और हम फिर उसको फिर बाद में मैनुअली वेरीफाई करते हैं। Right. Yeah, that makes a lot of sense. Yeah. Yeah, appreciate it. Yeah, sharing the details. So yeah, my goal was to build the automatic scanner. So just just to share the idea of I think I partly already did. So we need to build an automatic scanner which can scan the entire infrastructure of an organization and find any vulnerabilities wherever it is. Right? It could be an application, it could be a network, it could be cloud, it could be on premise, and anywhere that it is possible. So yeah, burp suite, I think I know on that, but is that paid or is there some open sources available for that? It's an open source tool, but a lot of features are paid basically, but mostly hackers are using it as an open source। It's not that expensive। I guess जो अभी डॉलर रेट चल रहा है उसके हिसाब से it's going to be around 60-70,000 पाकिस्तानी रुपीस उसकी per year की subscription। Right. हाँ जी, तो Alright. you can get the full features। वैसे जो आप बात कर रहे हैं you want to make a scanner and all, वो I've done that। उसको हम after this session we can discuss that in detail। Yeah, appreciate if we can chat a little bit more after the session. Yeah, that would be great. Definitely. No problem. Okay, so moving forward,
I have a couple of surveys that I wanted to show all of you. सबसे पहले तो these are surveys basically related to cybersecurity jobs. सबसे पहले you can see that a lot of corporate people would ask, okay, does your organization have unfilled cybersecurity positions? And 58% of them replied with a yes. After that, on average, how many cybersecurity applicants are well qualified for the position for which they are applying? Less than 25% के लिए 29% votes थे, 25 to 50% qualified के लिए 30% votes थे, and सिर्फ और सिर्फ 4% votes थे कि they think that their cybersecurity applications or their cybersecurity people are well qualified for the position they're working on. This shows a really huge market gap. ये दिखा रहा है कि there are a lot of unfilled positions और आगे और बहुत ज़्यादा आएंगी in this field because it's quite a big field and a growing field. तो इसलिए जो है we have to make quality resources and we have to push a lot of people इस तरफ आने के लिए. उसके बाद, how many of you of your unfilled cybersecurity positions are at the following levels? अगर individual contributors या technical cybersecurity की बात की जाए तो 52% ने वोट किया था कि most of the ये जो इंडिविजुअल साइबर सिक्योरिटी रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है बेसिकली. फिर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स नॉन टेक्निकल साइबर सिक्योरिटी, वेरी फ्यू, they replied with very few, 53%. For cyber security managers के लिए भी they replied with very few, 47% of the people said very few. For senior manager cyber security, 53% of the people said none. And for executive cybersecurity, 72% of the people said none. So here you can also see the unfilled cybersecurity का जो एक major gap है कि लोग इतने नहीं आ रहे इस साइट पर, और एक market gap बहुत ज़्यादा है. There are a lot of open positions, but उतने qualified staff नहीं है. In the next year, which of these levels do you see the hiring demand increasing, decreasing, or remaining the same? Individual contributors or technical cybersecurity के लिए 75% of the people said there will be an increase. फिर individual contributor non-technical cybersecurity, 51% said there will be no change, but still 44% of them said there will be an increase. फिर cybersecurity manager के लिए 42 and 55% for increase and no increase. उसके बाद senior manager, director of cybersecurity, 67% of the people said no change in the coming year. Executives of cybersecurity, the C-level executives basically, 75% of the people said no change. Do you feel that your organization's cybersecurity team is currently somewhat understaffed? 48% of the people said it's somewhat understaffed, and only 25% of the people said appropriately staffed, and 1% of the people said significantly overstaffed. So you can see the market gap over here too. In the past couple of years, especially after 2014, you can see there has been a very exponential increase in the searches for cybersecurity jobs, cybersecurity courses, and cybersecurity salary. ये तीन चीजें search की जा रही हैं on Google, and after almost 2014, it has increased exponentially. So, Acha, any questions before we move on? हेलो असद भाई, ये मेरा एक सवाल है. आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल. असद भाई, मुझे ये बताएं कि इसका प्रॉपर फ्लो क्या होना चाहिए. एक तो ये दो लोग, दो है ना, एक तो बाउंटीज का साइड और एक है रैंसम वाला साइड. आप एक तो उन्हें ब्लैकमेल करके भी कर सकते हैं, क्या मैं आपका ये कर दूंगा वरना अगर आप मुझे इतनी अमाउंट में आप, या फिर आप उनको ऑफिशियल उनके प्रोग्राम में जाएं जैसे फेसबुक वगैरह बाउंटी प्रोग्राम करवाते. तो ऑब्वियसली जो उनका
वो ब्लैक हैट हैकर है वो ज्यादा पैसे कमा रहा होगा एज कम्पेयर टू व्हाइट हैट हैकर, और उसको गारंटी भी नहीं है व्हाइट हैट हैकर कि वो जो वल्नरेबिलिटी फाइंड करता है उसको क्रेडिट मिलता है उसका, या फिर वो उसको एज सच उसके काम को सराहा जाता है। तो अगर तो आपकी अवेलेबिलिटी इज ऑथेंटिक, और काफी बार क्योंकि ऐसे होता है कि जो बग बाउंटीज में रिपोर्ट की जाती है अवेलेबिलिटी, वो या तो पहले से कोई रिपोर्ट कर चुका होता है इसलिए आपको वो बाउंटी नहीं मिलती, या फिर ऐसे होता है कि दे थिंक दैट इट्स नॉट वैलिड, वो कोई वैलिड वल्नरेबिलिटी नहीं है, वो कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी नहीं है जिससे उनको थ्रेट, इट्स देयर कॉल, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की कॉल है। बट जो ब्लैकमेलिंग वाली चीज आप कह रहे हो, दैट इज समथिंग दैट ब्लैक हैट हैकर्स डू एंड आई वोंट रिकमेंड दैट एट ऑल। ऑब्वियसली साइबर क्राइम लॉज हर जगह आर वेरी स्ट्रिक्ट, इवन इन पाकिस्तान दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा, अगर उसमें आपका आगे से काफी लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि लेट सपोज अगर हम पकड़े ना जाएं तो फिर वो आपका अपना है कि फिर वो वही बात है कि एज अ क्रिमिनल इफ यू नॉट गेटिंग कॉट तो वो आप जितना मर्जी चला लो। बट इसमें एक एडिशनल चीज मैं आपको बताऊंगा, इफ you're doing a white hat hacking thing and you're reporting the vulnerability properly, आप किसी चैनल के थ्रू उनको रिपोर्ट कर रहे हो या डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करके रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड if you're dead sure कि ये vulnerability is definitely वैलिड, तो उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि आप एक बार रिपोर्ट करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज उसका जो टाइम पीरियड है फॉर वेटिंग इट्स 1 मंथ। फिर 1 मंथ के बाद आप फिर सेकंड उसको उनको इंटीमेशन देंगे, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है दैट्स 15 days। उसके बाद आप उनको सेकंड इंटीमेशन देंगे, सॉरी थर्ड इंटीमेशन देंगे, इवन इफ दे डोंट रिप्लाई आफ्टर दैट, फिर 7 days का है। फिर आप 7 days के बाद उनको फिर से एक रिमाइंडर देंगे कि अच्छा दिस इज अवेलेबिलिटी जो कि मैंने रिपोर्ट की हुई है, प्लीज रिस्पॉन्ड बैक। अगर आपको उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो अकॉर्डिंग टू लॉज यू कैन पब्लिकली एक्सपोज दैट वल्नरेबिलिटी। आप किसी डार्क वेब फोरम के ऊपर या वैसे भी पब्लिकली आप उस चीज को एक्सपोज कर सकते हैं। नो वन इज गोइंग टू से एनीथिंग टू यू बिकॉज यू हैव प्रूफ कि मैंने जो है अकॉर्डिंग टू द लॉज आई हैव इंटीमेटेड देम 3 times about a vulnerability. I wanted to get rewarded, I wanted to get recognized, but they didn't reply back, तो इसलिए मैंने जो है इसको expose कर दिया। तो this is a way you can follow. लेकिन अगर ड्यूरिंग दिस टाइम जो आपने बताया है कि आप पहले उनको इंटिमिडेट करते हैं और फिर अगर वो पैच रिलीज कर देते हैं आपको पहले तो उसका फिर तो आपका वो सारा खत्म हो जाएगा जो आपने एफर्ट की पहले उन्होंने उस प्रोसेस के दौरान। नहीं, उस प्रोसेस के दौरान अगर तो आपके एप्लीकेशन के बाद वो पैच रिलीज हुआ है तो दे आर गोइंग टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। मोस्टली कंपनीज उसका एक्सप्लेनेशन दे देती होती हैं कि या तो हमारी इंटरनल टीम ने इसको ऑलरेडी चेक कर लिया हुआ था, या फिर किसी और बग बाउंटी हंटर ने इसको आइडेंटिफाई करके हमें रिपोर्ट किया था और उसके बाद हमने ये फिक्स किया। तो ये केस हो सकता है। अगर तो ऐसी बात नहीं है और अगर उन्होंने फिर भी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया पहले और आपके उसके बाद ही किया है, तो वो फिर उसको अगर मतलब डिटेल में चेक करने के बाद ही आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप उसको पब्लिकली एक्सपोज कर सकते हैं इस बात को, वो तो फिर उस पे। बट ऑब्वियसली आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कॉन्वर्सेशन के लिए तक नहीं जा सकते कि आप उनको ये कह सकें कि अच्छा नहीं आप मुझे इस चीज का प्रूफ दें कि जो है किसने रिपोर्ट किया है, या आपकी इंटरनल टीम ने वाकई में ये पहले से रिपोर्ट कर लिया था या नहीं कर लिया था। बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो अफोर्ड नहीं कर सकती बाउंटी देना, वो ये चीजें करती हैं कि वो रिपोर्ट आपने ही किया होता है लेकिन वो आपको वैसे ही कह देती हैं कि अच्छा ये तो कोई और रिपोर्ट कर चुका है, और वो खुद से उसको फिक्स कर लेती हैं जस्ट सो दैट उनको जो है वो ना देनी पड़े बाउंटी। तो उस केस में ये है कि अगर आप किसी फॉरम के थ्रू गए हुए हैं, हैकर वन या बगक्राउड के थ्रू गए हुए हैं, तो आप उनको रिपोर्ट करें, वरना आप जो है उनको डायरेक्टली सपोर्ट टीम को रिपोर्ट करने की कोशिश करें। अगर तो रिस्पॉन्ड करते हैं तो ठीक है, वरना उसका आप वैसे किसी पब्लिक फॉरम पे लिखते हैं। थैंक यू ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मूविंग ऑन, वील टॉक अबाउट द टाइप ऑफ अटैकर्स जो कि हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास नॉर्मल हैकर्स होते हैं, एक हमारे पास इनसाइडर अटैक्स होते हैं, फिर स्क्रिप्ट किडीज हैं और हैक्टिविस्ट हैं। ये 4 डिफरेंट तरह के अटैकर्स हैं जो कि कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं।
अगर हम हैकर्स की बात करें तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स, वाइट हैट एंड ब्लैक हैट हैकर्स. वाइट हैट हैकर्स वो हैं जो एथिकल हैकिंग करते हैं, पेन टेस्टिंग करते हैं, या फिर बग बाउंटी हंटिंग करते हैं. इवन इफ दे फाइंड आउट अवेलेबिलिटी, दे रिपोर्ट इट, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं. और दे डोंट डू इट फॉर एनी malicious purposes, they do it for their own career, या फिर अपना वैसी सीवी बढ़ाने के लिए, बग बाउंटीज लेने के लिए और इन चीज़ों के लिए. The black hat hackers, ये basically they do it for malicious content. वो किसी personal gain के लिए, वो blackmail करके पैसे लेने के लिए, या फिर वो किसी वैसे कोई grudge होता है किसी कंपनी से, तो वो grudge पूरा करने के लिए और इन चीज़ों के लिए वो basically black hat hacking करते हैं. This is all criminal stuff. और वो basically काफी सारे साइबर सिक्योरिटी लॉज, साइबर क्राइम लॉज जो है वायलेट कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों में. फिर हमारे पास इनसाइडर थ्रेट्स हैं. इनसाइडर थ्रेट्स में काफी बार ऐसे होता है कि लेट्स सपोज किसी कंपनी के अंदर ही एक बंदा बैठा है जो कि कोई डिस्कंट्रोल्ड एम्प्लॉई है. वो अपनी कंपनी से वैसे ही खुश नहीं है, उसको थोड़ी बहुत हैकिंग आती है, उसको तो इंटरनली बैठकर सारी चीजों का एक्सेस है. तो what he does is he tries to hack his own company or harm his own company from within the organization. अब जब इंटरनली आपको इंटरनल सर्विस के भी एक्सेस होंगे, आपको इंटरनल हर चीज इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस होगा, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू कॉज मोर डैमेज. तो इसीलिए व्हेनेवर वी डू पेन टेस्ट, हम एक्सटर्नल पेन टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम इंटरनल पेन टेस्ट करते हैं. इंटरनल पेन टेस्ट हम इसलिए करते हैं टू शो द ऑर्गेनाइजेशन कि अगर कोई आपका डिस्कंट्रोल्ड एम्प्लॉय है या कोई इनसाइडर थ्रेट है, तो वो इंटरनली आकर क्या क्या डैमेज पहुंचा सकता है. तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट टू, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट अटैक टू. या फिर कोई ऐसा हैकर है हु इज सिटिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बट ही इज एबल टू गो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. वो किसी का सिस्टम उसने हैक कर लिया है, या कोई वायरस है उसका जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गया है, तो वो इंटरनली उस वायरस से जो है वो क्या डैमेज पहुंचा सकता है टू द ऑर्गेनाइजेशन. फिर कॉर्पोरेट एस्पियोनेज, डिफरेंट कंपनीज की अपनी लड़ाइयाँ मार्केट के हिसाब से वैसे ही आपको पता है कि राइवलरी होती है, मार्केट राइवलरी होती है, उसमें काफी कंपनीज जो है दूसरी कंपनीज के ऊपर अटैक्स करवाती हैं ताकि उनकी मार्केट वैल्यू कम हो, उनका बिजनेस कम हो और इस तरह की चीजें. ऑब्वियसली क्योंकि एक रेपुटेशनल लॉस भी होता है, अगर मॉनेटरी लॉस ना हो तो एक रेपुटेशनल लॉस भी होता है कंपनी को. काफी लोग बताते हैं कि अच्छा ये कंपनी हैक हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, तो यूजर्स का वैसे ही ट्रस्ट लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो इसलिए भी ये करवाया जाता है. फिर स्क्रिप्ट किडीज होते हैं, ये बेसिकली दीज आर द हैकर्स जो कि अभी नए नए हैकिंग सीख रहे होते हैं, और वो अभी अभी उन्होंने सीखना शुरू किया होता है, और वो बस कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई भी चीज किसी तरह से खुल जाए, कोई भी चीज किसी तरह से हैक हो जाए, वो इस तरीके से हैक करने की कोशिश करते हैं उसको. तो दीज आर बेसिकली स्क्रिप्ट किडीज जो कि जो है बस हर स्क्रिप्ट चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बस कहते हैं किसी तरह से हैक हो जाए, एंड दे आर लर्निंग. तो वो दे कैन बी क्वाइट डेंजरस टू. फिर hacktivists होते हैं, these are basically sponsored hackers. They can be किसी कंट्री के sponsored hackers हो सकते हैं, किसी religious community के sponsored hackers हो सकते हैं, किसी political party के sponsored hackers हो सकते हैं. तो ये भी basically they do it for their purpose that they're working on. अच्छा, this year 32% साइबर क्रिमिनल्स ने अराउंड द ग्लोब जो हमारे साइबर अटैक्स हुए हैं उसमें से 32% जो है वो साइबर क्रिमिनल्स ने किए थे, जो कि हैक्टिविस्ट वगैरह थे. 23% वर ब्लैक हैट हैकर्स, और 15% वर नॉन मैलिशियस इनसाइडर्स, जो कि इनसाइडर अटैक्स जिसकी बात की मैंने पहले. तो 15% ऑफ द वंस वर इनसाइडर अटैक्स. अच्छा, एक चीज जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि SDLC में इसको थोड़ा सा हमें फोकस करना चाहिए कि SDLC साइकिल के अंदर सिक्योरिटी इनेबल करनी चाहिए, ताकि एवरी एप्लीकेशन जो कि बन के आ रही है वो पहले से इट शुड बी सिक्योर, और पहले से उसमें सिक्योरिटी फीचर जो है वो लगे हुए हों. एक नॉर्मल SDLC साइकिल किस तरह से चलता है, आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, एवोल्यूशन है, ठीक है. बट
आप हर फेज में अगर सिक्योरिटी को इन्वॉल्व कर दें, फॉर एग्जांपल इन द डिजाइन फेज आपकी थ्रेट मॉडलिंग एंड डिजाइन रिव्यू सिक्योरिटी रिसर्चर्स करते हैं, फिर डेवलपमेंट फेज में स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, आपका कोड रिव्यू करते हैं, वो हर कोड को सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अच्छा कौन कौन से चेक्स लगे होने चाहिए, कौन कौन से नहीं। फिर टेस्टिंग फेज में हमारी प्रॉपर सिक्योरिटी टेस्टिंग आती है और प्रॉपर एक कोड रिव्यू आता है, SCA भी आता है जिसमें सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एनालिसिस होता है। डिप्लॉयमेंट में सिक्योरिटी असेसमेंट होती है, फिर सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये चीजें होती हैं, फिर बाद में फिर हमारी रिस्क असेसमेंट्स भी होती हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी इन एन SDLC साइकिल। अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कोई क्वेश्चन? एक और मेरा सवाल है शहजाद भाई, वो ये कि अगर तो हमारी हैकिंग की जो सा हमारा यानी कि मोटिव हमारा ये हो कि हमने इंफॉर्मेशन लीक करनी है, इंस्टेड ऑफ हम उसको सॉफ्टवेयर को क्रैश या कोलैप्स करने की हमारा ना हो, मेन पर्पस हमारा इंफॉर्मेशन लीक करना है, जैसे किसी सेलिब्रिटी की या किसी पॉलिटिशियन की बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सारे हमने कोई चीज निकाल उसको फिर हम, अब अगर वो वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन है जो कि बाकी दुनिया से हाइड है, तो वो किस सिनेरियो में हम उसको कैश आउट कर सकते हैं और फिर क्या उसका तरीका? वो ब्लैक हैट में ही आता है। वो कोई बग बाउंटी तो ऑब्वियसली उससे आपको नहीं मिलेगी, बट वो अगर आपने किसी सेलिब्रिटी की, किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, किसी भी पब्लिक फिगर की आप इंफॉर्मेशन लीक करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन पहले गेट करके, वो बेसिकली आप किस तरह से करेंगे? आपका उनका मोबाइल हैक करेंगे, उनके लैपटॉप हैक करेंगे, तो वो दे डिडंट गिव यू परमिशन टू चेक दोस थिंग्स। या फिर बग बाउंटी प्रोग्राम्स भी जो होते हैं उसमें भी उन्होंने कहा होता है कि अच्छा आए हमारी वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करें और हमें रिपोर्ट करें। जो पब्लिक फिगर्स हैं उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो इसलिए जो है दैट्स टोटली इन द ब्लैक हैट साइड। ओके, थैंक यू। ओके। अच्छा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जिस तरह से पहले SDLC में बात की कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी इसी तरीके से है कि हम हर लाइफ SDLC के हर लाइफ साइकिल में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें। दिस इज समथिंग जो कि हर एप्लीकेशन के लिए इंप्लीमेंट होना चाहिए, या फिर इवन आफ्टर द एप्लीकेशन इज डेवलप्ड उसकी एक सिक्योरिटी टेस्टिंग जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। एक्सटर्नल और इंटरनल की मैंने पहले बात की। एक्सटर्नल इज बेसिकली एवरीथिंग जो कि पब्लिकली एक्सपोज्ड है हो, आपके सारे पब्लिकली एक्सपोज्ड एसेट्स एक्सटर्नल टेस्टिंग में आ जाते हैं। फिर इंटरनल टेस्टिंग में वो एसेट्स आते हैं जो इनसाइड द कंपनी सिर्फ एक्सेस होते हैं। तो फॉर इंटरनल पेन टेस्टिंग हमें या तो उस कंपनी का इनसाइडर VPN दिया जाता है, या फिर हम उस कंपनी में फिजिकली जाकर इन देयर ऑफिस बैठकर वो टेस्टिंग की जाती है फ्रॉम इनसाइड देयर नेटवर्क, ताकि ये देखा जाए कि देयर इंटरनल नेटवर्क वो कितना जो है सिक्योर है, तो वो हम तब टेस्ट करते हैं। 3 टाइप की टेस्टिंग होती है, नॉट जस्ट एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, बट 3 टाइप की बाकी भी टेस्टिंग, नेटवर्क टेस्टिंग एंड एवरीथिंग होती है। एक है ब्लैक बॉक्स, एक है वाइट बॉक्स, एक है ग्रे बॉक्स। अच्छा, इधर मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन आएगा। ब्लैक बॉक्स में वैसे बता देता हूँ कि ब्लैक बॉक्स इज एवरीथिंग दैट इज इन द एक्सटर्नल टेस्टिंग। जो मैंने एक्सटर्नल टेस्टिंग लास्ट स्लाइड में और पहले भी एक्सप्लेन की, इट्स टोटली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और जो मैंने इंटरनल टेस्टिंग एक्सप्लेन की, दैट इज टोटली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाट इज a gray box test? What do you think is a gray box test? Might be combination of black and white, internal and external. बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, काफी बार ऐसे होता है कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं यूफोन का पेन टेस्ट कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यूफोन मुझे कहता है कि आपने पहले ब्लैक बॉक्स करना है, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इंटरनल जाना है, आपने फिर वाइट बॉक्स करना है। मैं कहता हूँ ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में मैंने उनके सारे एक्सटर्नल एसेट्स जो है वो टेस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने लेट्स सपोज
मैंने पहले यूफोन से पूछा था कि अच्छा आप मुझे बताएं कि आपके एक्सटर्नल एसेट्स हैं कितने, मुझे सिर्फ काउंट बता दें, ताकि मैं अगर डार्क वेब से या किसी भी एसेट, किसी भी टूल से मैं फाइंड आउट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे पता हो अच्छा मैंने कितने एसेट्स फाइंड आउट करने हैं. बट लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल देयर वर 10 एप्लीकेशंस यूफोन की जो पब्लिकली चल रही थी, और आई वाज एबल टू फाइंड आउट 7 ऑफ देम, और मैंने उन 7 को फाइंड आउट करके उनकी टेस्टिंग करके यूफोन को वो रिपोर्ट पकड़ा दी कि अच्छा दीज आर द 7 एसेट्स जो कि मुझे मिले हैं, और उनका पेन टेस्ट का रिजल्ट जो है वो ये आपके पास है. यूफोन कहता है कि अच्छा ठीक है, दैट्स अ गुड रिपोर्ट, बट हमारे तो ये 3 और भी एसेट्स हैं, ये आपको मिले ही नहीं. तो फिर मैं कहूंगा कि अच्छा दैट्स अ गुड थिंग एट योर एंड कि एज अ हैकर मुझे नहीं मिले. हो सकता है किसी और हैकर को मिल जाए, बट एज अ हैकर मुझे टेस्टिंग करने से नहीं मिले. तो हम ऐसा करते हैं कि उसको हम फिर भी टेस्ट कर लेते हैं. आप मुझे उनके यूआरएल्स बता दें, मैं उनको टेस्ट करके आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज अगर किसी और हैकर को मिल जाते हैं, मुझे नहीं मिले, तो वो कोई डैमेज ना पहुंचा दे. तो हेयर यूफोन इज गिविंग मी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे खुद दी है. तो ये पार्ट थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स से ग्रे बॉक्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है. या फिर लेट सपोज मैं यूफोन के ऑफिस जाकर बैठ जाऊं और मेरे पास इंटरनल एक्सेस ना हो, मैं उधर का पब्लिक वाईफाई ले लूं और वहां से मैं इंटरनली घुसने की कोशिश करूं एज अ हैकर, तो दैट इज ऑल्सो ग्रे बॉक्स, जहां पे आपको थोड़ा सा एक्सेस मिला हुआ है बट नॉट टोटल एक्सेस, या फिर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन वो मिली है और नॉट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. क्योंकि ब्लैक बॉक्स में और एक्सटर्नल टेस्टिंग में यू हैव नो इंफॉर्मेशन एट ऑल बिफोर स्टार्टिंग. आपको सिर्फ कंपनी का नाम पता होता है एंड यू हैव टू स्टार्ट द पेन टेस्ट. तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस. यही चीज मैंने एक्सप्लेन की. ब्लैक बॉक्स इज एक्सटर्नल, वाइट बॉक्स इज इंटरनल, ग्रे बॉक्स इज आपको कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन या कोई थोड़ा सा एक्सेस मिल जाए तो दैट लाइज इन द ग्रे बॉक्स पार्ट. अच्छा, इसमें हमारे पास सिक्योरिटी में काफी सारे लोगों ने हो सकता है सुनना हो OWASP टॉप 10 का या फिर CWE 25 का. ये बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ओवरऑल ईयरली देखते हैं कि किस जगह पर कौन सी वल्नरेबिलिटी ज्यादा चली है या फिर कौन सी वल्नरेबिलिटी से लोग ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, एंड देन दे रिलीज अ लिस्ट. वास्प जो है वो अपनी टॉप 10 की लिस्ट निकालता है, CWE जो है वो अपनी टॉप 25 की लिस्ट निकालता है, और वो ये बताता है कि मेरे हिसाब से these are the top rated vulnerabilities जो कि इस साल लास्ट ईयर लोगों ने जिनको यूज किया है या फिर जिनके थ्रू कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो. OWASP की टॉप 10 अभी 2021 की लिस्ट आई है इन जनवरी 2022. तो अगर आप डिफरेंस देखें तो 2017 का थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है. उसमें ऐसे है कि 2021 में ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल काफी सा एक बड़ा फ्लॉ है जो कि मैनिपुलेट करके लोग उसको हैक करने की कोशिश करते हैं एप्लीकेशंस को. इन चीज़ों से क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स हैं विच इज़ अ बिग वल्नरेबिलिटी. इंजेक्शन अटैक्स हैं, इसमें आपके सीक्वल इंजेक्शंस आ जाते हैं, इसमें आपके क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आ जाती है, URL इंजेक्शंस आ जाते हैं, इस तरह के डिफरेंट इंजेक्शन अटैक्स आ जाते हैं. फिर इनसिक्योर डिजाइन, इसमें आपके फ्रेम के की इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं. सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैं, vulnerable एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स. अच्छा, ये दिस इज क्वाइट अ बिग थिंग जो और बहुत ज्यादा कॉमन भी है ये चीज कि मैंने देखा है कि काफी सारी एप्लीकेशन जो हैं वो अपने CMS को या फिर कोई भी प्लगइन हो या कोई भी लाइब्रेरीज हो उनको रेगुलरली अपडेट नहीं करते, एंड दैट इज अ बिग थ्रेट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, टू योर एप्लीकेशन. और उसमें जो है बेसिकली हम सिक्योरिटी सॉरी जो आउटडेटेड हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, आउटडेटेड प्लगइन्स होते हैं, उनके काफी सारे वायरसेस जो है मार्केट में तब तक आ चुके होते हैं, एंड व्हाट द हैकर्स डू इज उनको अपना वायरस बनाने की कोशिश नहीं करना होता, वो पब्लिक जो है वो उठाते हैं और उसके बाद जो है उसको यूज कर लेते हैं. तो ये चीज़ है. उसके अलावा सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स काफ़ी सारे हैं. वी कैन हैव अनदर सेशन कभी बाद में जिसमें इनकी सबकी डिटेल्स में हम जाएंगे इंशाल्लाह. बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ व्यू. इसी तरह से CWE की लिस्ट है जो टॉप 25 की लिस्ट होती है, ये भी इसी तरीके से अपनी एक टॉप 25 की लिस्ट निकालता है कि मेरे हिसाब से दीज वर द टॉप रेटेड वल्नरेबिलिटीज ऑफ लास्ट ईयर.
तो वो ये वल्नरेबिलिटी ये 2021 की लिस्ट थी और उसने वो बताया हुआ कि 2020 से क्या कंपैरिजन है उसका। अच्छा, these are some common attacks on applications जो कि normally होते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, जावास्क्रिप्ट अटैक्स होते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के पेलोड्स होते हैं जो कि हम सर्च इंजन्स में या फिर हम इनपुट पॉइंट्स में डालने की कोशिश करते हैं, हर इनपुट पॉइंट में, और अगर वो चल जाए तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हैज 3 डिफरेंट टाइप्स, रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड एंड सेल्फ। तो ये 3 टाइप्स हैं। ये वल्नरेबिलिटी है। सीक्वल इंजेक्शन, काफी सारे लोगों को सिक्योरिटी का आइडिया तब होता है जब सीक्वल इंजेक्शन की टर्म सामने आती है। बाकी वल्नरेबिलिटीज बाद में वो उनको पता लगते हैं, बट सीक्वल इंजेक्शन इज समथिंग दैट इज क्वाइट कॉमन वल्नरेबिलिटी और बहुत ज्यादा लोगों को इसका आइडिया होता है। ये बेसिकली आपके डेटाबेस के अंदर इंजेक्शंस होते हैं कुछ पेलोड्स की, उसके थ्रू ये की जाती है। फिर वीक ऑथेंटिकेशन है जिसमें हम कोई लेट सपोज पासवर्ड पॉलिसीज वगैरह सही नहीं लगी हुई या कुछ भी, तो उनको हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योर सेशन वल्नरेबिलिटीज जिसमें हम सेशन हाईजैकिंग की वल्नरेबिलिटीज की तरफ जाते हैं, दूसरे बंदे का सेशन हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह की वल्नरेबिलिटीज है। फिर सिक्योर ट्रांसमिशन वल्नरेबिलिटीज, इसमें हम बेसिकली जो आपकी एप्लीकेशन की ट्रांसमिशन, जो कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन है एप्लीकेशन की या किसी भी चीज की या किसी डेटा की, डेटा फ्लो की, वो इन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हम MITM अटैक्स, मैन इन द मिडल अटैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें। फिर प्रिविलेज एस्केलेशन है, लेट सपोज मुझे किसी एप्लीकेशन का एक गेस्ट यूजर मिला हुआ है और मैं कोशिश करूं कि वहां से मैं एडमिन यूजर लेने की एक्सेस करूं, या फिर मैं उस OS के ऊपर मैं एडमिन यूजर लेने की एक्सेस करूं, तो दैट इज प्रिविलेज एस्केलेशन। फिर इंफॉर्मेशन लीकेज एंड इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग भी, इट्स क्वाइट अ कॉमन वल्नरेबिलिटी, बिकॉज एरर हैंडलिंग से ये होता है कि हमें एरर जो हमें मिल रहे होते हैं एप्लीकेशन के, उससे भी काफी सारी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे होते हैं। कोई क्वेश्चन अभी तक? So far so good. You can continue. ओके। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं कंट्री वाइज बताऊं कि किस कंट्री के ऊपर सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स होते हैं, तो ओवरऑल जो ग्लोबली अटैक्स हो रहे हैं उसमें 3% ऑफ द अटैक्स आर ऑन पाकिस्तान, 4% वियतनाम, रशिया, ब्रुनाई पे हो रहे हैं, 6% ऑन साउथ कोरिया, 6% ऑन यूक्रेन। ये आजकल थोड़ा सा बढ़ गया है ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वॉर, बट स्टिल ये ताइवान पर 7%, जापान पर 11%, इंडिया 17%, एंड यूनाइटेड स्टेट्स पे सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स जो है वो होते हैं, दैट इज 38%, क्योंकि मोस्टली वैसे कंपनीज भी उस तरफ हैं, बट वैसे भी उनके गवर्नमेंट एसेट्स के ऊपर भी जो है अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें चाइना के ना होने की क्या वजह है असद भाई? अच्छा, चाइना का जो मैं यही देख रहा था कि इसमें चाइना का नाम नहीं है, चाइना का होना चाहिए था, बट व्हाट आई थिंक इज चाइना के ऊपर साइबर अटैक्स इसलिए भी वैसे कम होते हैं बिकॉज उन्होंने ना बहुत ज्यादा अपना एक बबल के अंदर इन्वायरमेंट आई वुड से रखा हुआ है। जिस तरह से आपको पता है वो काफी सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि वो अपनी यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, उधर बाहर की एप्लीकेशंस नहीं यूज होती, या फिर उनका जो बेसिकली आप कह लें कि जो है एक सिक्योर बबल है जिसके अंदर उनका एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, जिसकी वजह से जो है उनके ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, बट उतने नहीं हो रहे जितने बाकी बड़ी कंपनीज में बाकी कंट्रीज पर हो रहे हैं। इवन आप अगर देखें रशिया को, रशिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड उसके ऊपर भी 4% हो रहे हैं। रशिया हैज द बेस्ट हैकर्स वैसे, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है, बट रशिया इज आल्सो अ बिग कंट्री और उसके ऊपर देयर इज ओनली 4%। अच्छा, डेटा ब्रीचेस बाय द नंबर्स, IoT अटैक्स जो हैं वो बाय 2017 600% से ज्यादा हुए हैं। रैंसमवेयर अटैक्स जो है वो एनुअली 350% बढ़ रहे हैं। रैंसमवेयर अटैक्स का अगर किसी को नहीं पता तो आई वुड एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली दैट रैंसमवेयर अटैक इज व्हेन आपका
आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका पर्सनल सिस्टम, उसके ऊपर एक अटैक आता है, एक वायरस आता है, एंड ऑल योर फाइल्स गेट इनक्रिप्टेड, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ जाती हैं, और उसके बाद हैकर्स वो डिमांड करते हैं, रैंसम डिमांड करते हैं। तो वो कहते हैं कि इतना आप रैंसम पे करोगे, हम आपको की दे देंगे और आपकी फाइल्स आपको रीस्टोर हो जाएंगी। तो रैंसमवेयर अटैक्स आर ग्रोइंग 350% एनुअली। फिर अप्रॉक्सीमेटली 24,000 malicious मोबाइल एप्स वो हर दिन जो है वो ब्लॉक की जाती हैं, क्योंकि malicious एप्स प्ले स्टोर पे, स्पेशली जो गूगल प्ले स्टोर है उसके ऊपर डाली जाती हैं। एप्पल का तो दे हैव क्राइटेरिया जिसमें वो 4 to 5 days लेते हैं वेरिफिकेशन की, उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद वो स्टोर के ऊपर डालते हैं। बट ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड अदर प्ले स्टोर्स, जो हुआवे का प्ले स्टोर है और एक दो और, उनके ऊपर जो है वो एप्लीकेशंस जो है वो 24,000 एप्लीकेशंस ब्लॉक होती हैं एवरी डे। फिर मोस्टली साइबर अटैक्स कहाँ से आ रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो है चाइना का नाम आ गया है। 20% ऑफ द साइबर अटैक्स जो है चाइना से ओरिजिनेट हो रहे हैं, 11% यूएसए से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एंड 6% रशिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं। 71% ऑफ द अटैक्स जो हैं वो फिशिंग ईमेल्स के थ्रू होते हैं, जो कि फेक ईमेल्स होती हैं। आपको काफ़ी लोगों को ईमेल्स भेजनी है, आपकी इतनी लॉटरी निकली है, आपका ये अवार्ड निकला है, ये निकला है, वो निकला है, या फिर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल स्पूफ्ड ईमेल्स भेजनी कि आपको आपके बॉस के ईमेल से ईमेल आ रही है कि अच्छा यू हैव बीन प्रमोटेड या यू हैव बीन फायर्ड या ऐसे कुछ भी, तो आप इस डॉक्यूमेंट को खोल रहे हैं। वो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को खोलते हैं तो उसके अंदर वायरस होता है। तो दीज आर सम टाइप ऑफ अटैक्स जो कि फिशिंग अटैक्स, स्पूफ्ड ईमेल अटैक्स में जो है वो आते हैं। 71% ऑफ द अटैक्स इस तरीके से हो रहे हैं। फिर 38% ऑफ द अटैक्स उसमें malicious फाइल एक्सटेंशंस जो है वो यूज हो रही हैं। वायरसेस जो है वो हर फॉर्मेट में अब बन जाते हैं, वर्ड फॉर्मेट में, पावर पॉइंट, पीडीएफ, एक्सेल, हर फॉर्मेट में जो है वो वायरसेस बड़ा इजीली बन जाते हैं। पहले सिर्फ एक टाइम होता था जिसमें एक्जी फाइल्स बनती होती थी, बट नाउ हर फॉर्मेट में जो बन जाता है। इवन जो एपीके फाइल्स होती हैं आपके मोबाइल ऐप की, आईपीए फाइल होती है आईओएस ऐप की, उस फॉर्मेट में भी वायरसेस आर अवेलेबल। अच्छा, व्हाट्स द कॉस्ट? By 2021 $6 trillion जो है वो साइबर क्राइम बजट में हिट हुआ है, और साइबर क्रिमिनल्स ने जो है वो $6 trillion वो पकड़ा है। 43% ऑफ कॉस्ट, अब ये बेसिकली इंफॉर्मेशन लॉस की कॉस्ट है। फिर उसके अलावा लॉस्ट स्टोलन रिकॉर्ड्स पर इंडिविजुअल की जो कॉस्ट है वो $141 है, एवरेज कॉस्ट। उसके अलावा द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ malware अटैक ऑन अ कंपनी इज $2.4 million। एक किसी भी कंपनी के ऊपर malware अटैक हो तो $2.4 million का एक एवरेज कॉस्ट निकलती है। बहुत सारी बड़ी कंपनीज के ऊपर ransomware अटैक्स हो रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ी फिगर दी जाती है कि ये दें। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ransomware अटैक हुआ था वो a couple of years ago, वो शौकत खानम के ऊपर हुआ था, एंड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई थी। इसी तरह कुछ और अटैक्स भी हम अभी आगे देखेंगे, फेमस अटैक्स। Is your company at risk? 74% of companies have over 1,000 stale sensitive files. तो वो obviously you are at risk. वो files कोई भी उठा सकता है आकर। 21% of all files are not protected in any way. 41% of companies have over 1,000 sensitive files, including credit card numbers and health records, left unprotected. तो even if you're talking about cyber security या cyber attacks की आप बात करें, तो वो तो हैकर्स वैसी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी तरह से हैक इन करके वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें। बट अगर इस तरह की कोई चीज़ अनप्रोटेक्टेड पड़ी हुई है तो वो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू, इट्स गोइंग टू, वो हैकर्स के लिए तो बड़ा एक वो चेरी ऑन द टॉप है। 65% never prompted to change their passwords. Password change obviously एक कहा जाता है कि आप regularly 40-45 days बाद लाजमी अपना password change कर लें, if not before. 69% of organizations don't believe the threats they're seeing can be blocked by their antivirus software. Obviously काफी सारे लोग वैसे individually भी ये कहते हैं कि अगर मैंने antivirus लगा लिया तो क्या मेरे ऊपर कोई अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता, या मैंने एंटीवायरस लगा लिया अब तो मेरे ऊपर कोई वायरस नहीं आएगा। तो दैट्स नॉट द केस। हैकर्स व्हाट दे डू इज, वो जब कोई वायरस, अगर कोई नया वायरस बनाते हैं तो व्हाट दे डू इज वो पहले जो है उसको टेस्ट करते हैं फॉर स्पेसिफिक एंटीवायरसेस। अगर उनको पता है कि किसी कंपनी के अंदर लेट्स सपोज कैस्परस्की चल रहा है, तो वो वायरस
ऐसा बनाएंगे जो कि जो है कैस्परस्की को बाईपास कर सके। तो इसलिए your only your antivirus is not going to save you. You should have other security controls. You should have viruses. You should have IDS, IPS. You should have other security controls जो कि जो है आपको prevent करें viruses को। अच्छा, before we move forward, किसी का कोई question? I hope मैं बोर नहीं कर रहा हूँ किसी को। अच्छा, there was a very famous attack back in 2018 बैंक इस्लामी के ऊपर, और जो है बैंक इस्लामी के क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स भी इवन दे गॉट स्टोलन, और वो डार्क वेब के ऊपर पड़े हुए थे, और a total of 2.66 million rupees जो है वो निकाला गया था फ्रॉम दोस कार्ड्स। अच्छा, अब ये वो अमाउंट है जो कि रिकॉर्डेड है और जो कि बैंक इस्लामी क्लेम करता है कि हमारा इतना मॉनेटरी लॉस हुआ है, बट फ्रॉम अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हमने ये सुना है कि दिस अमाउंट वाज अराउंड 8 to 9 million रुपीस। और इसमें वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो दिस अटैक वाज नॉट ओनली ऑन बैंक इस्लामी। इस टाइम पर एवरी अदर बैंक वाज अंडर अटैक। बहुत सारे बैंक्स के जो है क्रेडिट कार्ड के डंप्स, नंबर के डंप्स जो है वो डार्क वेब के ऊपर पड़े हुए थे, और लोग उनको यूज कर रहे थे, खरीद कर यूज कर रहे थे उन क्रेडिट कार्ड्स को। बट बैंक इस्लामी का नाम इसलिए ज्यादा आया बिकॉज जो मॉनेटरी लॉस था वो बैंक इस्लामी का सबसे ज्यादा था, एंड वो इंटरनेशनली उनकी जो है वो काफी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही थी। काफी सारे यूजर्स को बैठे बैठाए पता लग गया था कि मैसेज आ रहे थे कि रशिया में, चाइना में, किसी और कंट्री में जो है उनका कार्ड यूज हो रहा है। तो दिस इज हाउ दे डिड इट। एंड उसके अलावा ये भी है कि सिर्फ उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स नहीं स्टील किए, उन्होंने ये भी किया कि जो इंटरनल सर्वर्स थे वो भी कॉम्प्रोमाइज करके रखे हुए थे, उन्होंने इंटरनल डेटा भी वाइप आउट किया। इसलिए बैंक इस्लामी के पास काफी सारे कस्टमर्स का डेटा ही नहीं था कि वो कहाँ से देखते कि किस बंदे के कितने पैसे निकले हैं फ्रॉम देयर अकाउंट। तो दिस वाज अ वेरी फेमस एंड बिग अटैक ऑन पाकिस्तानी बैंक्स की अगर हम बात करें तो। उसके अलावा एमसीबी बैंक की वेबसाइट जो है वो बैक इन जुलाई 2013 हैक हो गई थी, और ये बाद में पता लगा था कि इट वाज डन अक्रॉस द बॉर्डर, और इन्होंने सिर्फ वेबसाइट नहीं बल्कि बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सारा हैक करके तो पैसे निकाले थे फ्रॉम द बैंक। फिर फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, अगर किसी को पता हो, इफ anyone does not know about this bank, it's माइक्रो फाइनेंस बैंक जो कि एचपीएल का है। पहले अलग बैंक होता था, अब एचपीएल ने एक्वायर कर लिया हुआ है इसको। 14 अगस्त को जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही टोटली फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर बहुत ज्यादा अटैक्स होते हैं, 15 अगस्त को हम लोग करते हैं, बट 14 अगस्त को जो है ये एक अटैक आया ऑन फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, और ये इस तरह का एक मैसेज जो आप देख रहे हैं, इंडिया वाला फ्लैग, और नीचे जो है जो मैसेज है जिसमें जो है इमरान खान से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था, एंड आई गेस कुलभूषण से रिलेटेड भी शायद, या कश्मीर से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था। ये लिखा गया, और उसके अलावा बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को कुछ भी नहीं हुआ था, ये सिर्फ वेबसाइट हैक हुई थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। इसको जब डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता ये लगा कि देयर वाज अ गाय, एक लड़का था जो कि ही वाज फ्रॉम सियालकोट, ही हैक्ड दिस वेबसाइट, और वो अभी हैकिंग बेसिकली सीख रहा था, और उसने उसके बीच में ये एप्लीकेशन जो है वो हैक की, और उसके बाद वो डर गया, घबरा गया, उसने कहा यार ये तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ये क्या हो गया मेरे से, और उसके बाद जो है उसने इस तरह की चीजें डाल दी कि यार चलो हो सकता है इंडिया वालों के ऊपर ब्लेम चला जाए, मैं बच जाऊं, बट ऑब्वियसली ही गॉट अरेस्टेड फॉर डूइंग दिस। Bangladesh bank heist back in 2016, बैंक्स में सबसे बड़ा साइबर क्राइम का इंसिडेंट वाज द बांग्लादेश हाइस्ट। इसमें टोटल ऑफ $81 million जो है वो बांग्लादेश स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश से फिलीपींस के अकाउंट्स में और डिफरेंट अकाउंट्स में जो है वो जा रहे थे, और हैकर्स जो है वो काफी अरसे तक डेली की ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। और उसके अलावा ये है कि ये
रुके इस तरीके से थे कि ये डेली के करते थे, ट्रांजैक्शंस करते थे, बट हुआ ये कि एक दिन when they were entering their script और वो पासवर्ड लगा रहे थे, तो वो पासवर्ड उनसे गलत लगा and it prompted the admin user. जब वो एडमिन यूजर को प्रॉम्प्ट किया तो उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि अच्छा दिस इज समथिंग व्हिच आई डिड नॉट डू, और ये मैंने ट्रांजैक्शन का अलर्ट जारी ही नहीं किया, तो ये ट्रांजैक्शन क्यों निकल रही है। ये ट्रांजैक्शन पहले जाती थी टू बैंक इन न्यूयॉर्क, और वहां से जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स में जाती थी इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इन्होंने जब इस चीज को डिटेल में देखा तो पता लगा कि इस तरह से हैकर्स जो है वो कर रहे हैं, और वो फिर ऑब्वियसली दे कुडंट फाइंड देम, बट लेटर ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उनका स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश का गवर्नर था, ही गॉट अरेस्टेड, और वो फिर जो है उसको अरेस्ट करके पता लगा कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दिस। उसने अपने ही हैकर्स को कहा हुआ था कि आप हैक करें, और ही हेल्प्ड देम बेसिकली टू हैक द स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश। अच्छा, व्हाट इज एट स्टेक? हमारी इंटरनेट की इकोनॉमी इज 5.3 ट्रिलियन डॉलर्स। जिस तरह बाकी साइबर क्राइम इकोनॉमी हैज ग्रोन टू एंजॉय एटलीस्ट 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स इन प्रॉफिट्स ईच ईयर। फिर वैल्यू ऑफ द साइबर सिक्योरिटी मार्केट इज एंटिसिपेटेड टू रीच 300 बिलियन डॉलर्स बाय 2024। ये साइबर सिक्योरिटी मार्केट वो है जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जॉब्स से रिलेटेड वाली चीज है। 300 बिलियन डॉलर्स। Cyber crime damages to reach $6 trillion annually by 2022, exponentially more than the inflicted from natural disasters in a year, and more profitable than the global trade of drugs combined. अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि $6 ट्रिलियन जो है वो साइबर क्राइम में क्रिमिनल्स जो है वो पकड़े, और मेजर लीगल ड्रग्स की जो बेसिकली मार्केट है, और उसके अलावा वैसे भी जो नेचुरल डिजास्टर से जितना डिफरेंट कंपनीज को जो है मॉनेटरी नुकसान होता है, उससे ज्यादा जो है दिस इज समथिंग दैट इज more than that. फिर people lost $19 billion to digital ad fraud last year. जो ads आपके पास आ रहे होते हैं, उसके पीछे भी viruses काफी बार होते हैं। This is something just $19 billion. फिर this figure is expected to rise to $44 billion by end of 2022. फिर average cost of malware attack on a company is $2.4 million. ये हमने पहले भी डिस्कस किया। And over the past 5 years, security breaches have increased by 67%. तो security breaches बढ़ते जा रहे हैं, and but जो है we don't have much resources in the market yet, और साथ साथ जो है हम उसकी market आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही है, and we don't have much qualified resources yet. कुछ top and famous attacks हैं। In August 2013, Yahoo के 3 billion accounts were hacked। वो dark web के ऊपर उनका username password पड़ा हुआ है। Marriott के between 2014 to 18, 500 million guests का data निकला था। Yahoo again was hacked in late 2014. 500 million accounts data was lost. अच्छा, ये जो data है ये भी basically it's sold on dark web, तो इसलिए सिर्फ data निकलना भी it's a monetary loss. Adult friend finder app है, 412 million accounts. MySpace पहले यूज होती थी Facebook की जगह। May 2016 में 360 million accounts were leaked. Equifax का एक बहुत बड़ा हैक था जिसमें 145 मिलियन कस्टमर्स का एंड इवन उसके अलावा 2 लाख क्रेडिट कार्ड नंबर्स भी लीक हुए। एंड eBay के 145 मिलियन अकाउंट्स इन May 2014। टारगेट के डेटा ऑफ 110 मिलियन कस्टमर्स जो है वो इट गॉट लीक्ड। फिर लिंक्डइन के ऑल्ट्रिक्स, एडोब, सोनी और साउथ कोरिया का डिफेंस इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर का डेटा 235 GB का डेटा वो स्टोलन। करीम का ये करीम पाकिस्तान का बेसिकली हैक था। 14 मिलियन यूजर्स का डेटा जो है वो हैक हुआ था, और उसमें भी बाद में पाकिस्तानी हैकर्स ही इन्वॉल्व निकले थे। उबर का डेटा वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, फेसबुक का डेटा वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। अच्छा, ये
सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि अ नॉर्मल यूजर वो इस तरह की if he or she sees a website, वो इस तरह से एक नॉर्मल वेबसाइट देखेगा कि अच्छा ये वेबसाइट है हमारे पास, and what a hacker sees in the same website, वो ये देखेगा कि जहाँ पर URL है उधर से मैं ईव्सड्रॉपिंग कर सकता हूँ, ये मेरे पास सर्च बार है या कुछ भी, मैं इधर SQL इंजेक्शन कर सकता हूँ, मैं इधर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर सकता हूँ, मैं पासवर्ड गेसिंग के लिए इधर जा सकता हूँ, मैं अकाउंट इनमरेशन कर सकता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए देख सकता हूँ कि मुझे कोई आइडेंटिटी किसी की निकालनी है या कुछ भी, या फिर मैं सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू मैं निकालने की कोशिश कर सकूँ, तो वो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ. दिस इज व्हाट अ हैकर सीज इन एवरी एप्लीकेशन बेसिकली. So we're going to conclude this now. If there's any other question, you can ask me. And uske ilawa, वैसे if you think that there was something missing, and if you think that there's something else you would like to learn more about, तो वो हम next session में अपने we can discuss that and we can plan that out. So, any questions at all? I have a question. जी. मेरा ख्याल है एक तो असद हमें थोड़ा सा कुछ अगले सेशन में कुछ बेसिक्स पे काम करना है कि किन टेक्नोलॉजीज या टूल्स को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज हैं, यानी कि उनको लर्न करने में उनका, यानी कि अगर मुझसे कोई मेरे टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछे तो मैं उसको बता सकता हूँ कि यार ये टूल्स किस हद तक कॉम्प्लेक्स हैं और इसको किस किस टाइम फ्रेम के अंदर हम लर्न कर सकते हैं. तो अगर हम लर्निंग पैटर्न को अगर चेक करें तो मेरे ख्याल अगला प्लान वो करते हैं और उसमें एक छोटा सा स्मॉल सा कुछ डेमो भी हो जाए तो वो हम प्लान कर लें. तो आई थिंक दिस इट वुड बी गुड, क्योंकि ये चीज़ें तो इन्फॉर्मेटिव थी और काफ़ी ज़बरदस्त थी, जो कि वाकई मेरे लिए भी बड़ी चीज़ें न्यू थी. और लेकिन ये कि इसमें अगर हम जब टूल्स के बारे में इंक्लूड करेंगे और कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगी तो देन आई थिंक इट विल बी गुड. Definitely. We can plan a session जिसमें हम tools कुछ demonstrate करें, कुछ मैं आपको application से related vulnerabilities find out करने दिखाकर मैं बता सकूं कि अच्छा किस तरह से applications hack की जाती हैं, या फिर इवन इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेजेस हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द डार्क वेब, थ्रू डिफरेंट सोर्सेज. इवन मैं जिस तरह से आपको बताऊं कि गूगल को हम लोग वैसे नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, गूगल सर्च इंजन को, बट हैकर्स उसको जो है बेसिकली एक और तरीके से यूज करते हैं. हमारे पास कुछ गूगल ऑपरेटर कमांड्स होती हैं जो कि हम यूज करते हैं टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट anyone at all. उसमें हम CCTV कैमरास भी निकाल रहे होते हैं, उसमें हम डेटाबेस के डंप्स निकाल रहे होते हैं, लोगों की जो लीक्ड पिक्चर्स होती हैं वो भी गूगल के ऊपर पड़ी होती हैं, बट नॉर्मल पीपल डोंट नो अबाउट दैट. तो उसके ऊपर भी एक सेशन किया जा सकता है एंड वी कैन डू इट इन डिटेल. Any other question or any review anyone would like to give? जी अस्सलाम वालेकुम. जी सर, थैंक यू, बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन था. मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि ये साइबर सिक्योरिटी की कोई सीरीज ऑफ सेशंस है या कोई कोर्स है या हमारा प्लान क्या है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव एक्चुअली, बिकॉज मैं पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हूँ एज अ डेवलपर, जो वेब एप्स की आपकी सिक्योरिटी की डोमेन है, और जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग की आपने बात की है, स्टैटिक कोड एनालिसिस, और जो ये आपकी ब्लैक बॉक्स में जो फील्ड इंजेक्शंस हैं इनके अंदर, तो क्या हम इन चीज़ों को कोई डिटेल में कुछ प्लान कर रहे हैं आगे प्रैक्टिस करने का, या इज इट लाइक वन ऑफ काइंड ऑफ अ थिंग? Yes, definitely. We are planning that. हम इसके बाद multiple sessions और रखेंगे, कुछ hands on sessions भी रख लेंगे, जिसमें हम hands on training टाइप की चीज रखी जा सकती है बड़े आराम से. और अभी फिलहाल it was type of an introductory session to give an idea के what the cyber security field actually is, और इसकी market value क्या है, इसमें fields कौन कौन सी हैं जिसमें आप जा सकते हैं, और कौन कौन सी fields में कितना अभी मार्केट गैप है और कितनी रिसोर्स शॉर्टेज है बेसिकली. तो वो उस चीज को हम डिस्कस कर रहे थे और मेनली एक साइबर सिक्योरिटी का हम चीजें देख रहे थे. बट द थिंग यू टॉकिंग अबाउट वो डेफिनेटली हम उसको एक प्रॉपर कोर्स प्लान देकर तो वी कैन डू दैट इजीली. ठीक है, थैंक्स. Like people on the call here what kind of background? Because they're DevOps, developers, backend. Sorry, Ali, I can't hear you clearly.
cannot. Just one moment. Better? Is it हाँ better जी, now? much Okay. better. Okay, great. So I was just wondering, like, the people on the call here have what kind of background? Like, are they developers, front end, back end, DevOps, or what are their existing roles? If everyone can take a few seconds to do that, share that. I think we have multiple background people over here. We have people from DevOps, we have people from security, we have non-technical people too over here. Yeah, so that. Because I explained early on ना तो वो उसमें ऐसे कि अब I would say that this field is something जिसमें even the non-technical people can jump in. वो थोड़ा सा सीख के तो they can jump in. अगर वो developer हैं तो they can be a very good application security testers. If someone is from the network side, they can be very good in network security, cloud security, or yeah, that's all right. I just wanted to, I want to have the information, like what are the backgrounds. Yeah, so and I understand, but never mind. All right, no worries. Yeah, that's all from me. Okay. Any other question or any review anyone would like to give? अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बिलाल, मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। सर इट वाज अ वेरी गुड सेशन और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो पसंद आई हैं और वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। जो कि जिनका बैकग्राउंड जो है ना वो अगर नहीं भी है सिक्योरिटी से रिलेटेड तो उनके लिए जो है ना वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। तो जैसे एज डिस्कस्ड ये है कि इस सीरीज़ को आप जारी रखें और इसमें ये है कि अगर सिमुलेशंस वगैरह भी अगर हम कहीं दिखा सके तो इट वुड बी अ वेरी गुड सेशन एज वेल। Definitely. Thank you so much, Bilal. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Bilal. Thank you.